بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں نہیں جانتا اس میں قدرت کا کیا راز ہے۔ یہ دوسری دفعہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلی دفعہ جو ویڈیو بنائی وہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ گڑبڑ ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک کام ذہنی یکسوئی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے تو وہ دوسری دفعہ ویسا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ویڈیو میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو تعلیمی نکات، ایسے نکات بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان نکات کے ذریعے کسی نسخے کو دیکھ کر یہ جج کر سکیں کیا نسخے میں کچھ جان ہے یا نہیں ہے۔ اور آج ہڑتال برقیہ کے نسخوں کی جان، اس کا راز، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے اور دیکھیے یوٹیوب پر ہڑتال برقیہ کے کتنے نسخے موجود ہیں، خط کش نسخے موجود ہیں اور طرح طرح کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا اور اس میں راز نہ ہوتے تو جس قدر نسخے موجود ہیں تو آج تک تو ہر پاکستانی بلکہ ہر شخص دنیا میں موجود ہر شخص کیمیا گر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس قدر اس کے بیان کیے جاتے ہیں وہ نہیں بنتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ قدرت کی رہنمائی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ قدرت کی رہنمائی کو موقع پر سمجھ سکیں تو آپ کے لیے کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہ سمجھ سکیں تو پھر دوسری بات ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص تھا، میں نے اس سے گندک قائم مانگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے گندک قائم کا نسخہ بتا دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے وہ تھوڑی سی گندک دے دو۔ خیر اس نے وہ تھوڑی سی بنی ہوئی گندک مجھے دے دی۔ میں نے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد کچھ خیالات میرے ذہن میں آئے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا۔ جب پہلی دفعہ میں نے اسے بنایا تو اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے اس گندک کا قائم النار مل گیا، باقی سب نہیں بنی تھی، صرف ایک ٹکڑا قائم النار ہو گیا تھا، جو میرے لیے ایک اشارہ تھا کہ اس نسخے میں جان ہے اور بنے گا۔ میں نے اس پر محنت کی اور تقریباً 3 ماہ کے بعد، یعنی 2 ماہ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، ان میں نے کوشش کی، 2 ماہ کے بعد میں اس نسخہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رہنمائی جو قدرت نے میری کی تھی، اس میں ایک ٹکڑا جو مجھے مل گیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر میں نے کوشش کی اور آخرکار کامیاب ہو گیا۔ اس لیے قدرت کی رہنمائی، قدرت کے جو اشارے آپ کو ملتے ہیں ان کو یاد رکھا کیجیے گا، ان کے مطابق عمل کیا کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن برقیہ کے قائم کرنے کے لیے سم الفاظ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس برقیہ کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو کام نہیں کرتا، آپ نے اسے قائم کیا ہوا ہے، مدبر کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ سم الفاظ کو شامل کیجئے، انشاءاللہ تعالی ان اس کا کام کرنے لگے گا، اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آنے لگیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ برقیہ کے ساتھ سم الفاظ کو کس قدر ملایا جائے گا، تو کیونکہ ہم نے برقیہ کا نسخہ بنانا ہے
उसके साथ शम्मिलफार को शामिल करना है तो शम्मिलफार की मिकदार कम रहेगी। आप 2 ग्राम मिला सकते हैं, 10 ग्राम के मुकाबले में 2 ग्राम डाल सकते हैं, 3 ग्राम डाल सकते हैं, बस यही मिकदार, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा डालेंगे तो फिर वो वर्किया नुस्खा नहीं रहेगा। ये टेक्निकल पॉइंट था। यानी अगर हम वर्किया बना रहे हैं और उसमें शम्मिलफार को शामिल करना है तो शम्मिलफार की मिकदार 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम के मुकाबले में वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा करेंगे तो 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर लेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम शम्मिलफार की मिकदार से ज्यादा कर देंगे तो वो वर्किया नुस्खा नहीं रहेगा, बल्कि वो शम्मिलफार का नुस्खा हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये वो राज होते हैं जो बताने वाले नहीं बताते। मैं नहीं जानता वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर नुस्खा बताना है तो ठीक ठीक बता दो, नहीं बताना तो जवाब दे दो, इनकार कर दो, नहीं बताना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या जब हम दोस्तों से नुस्खे बात करते हैं तो क्या हम अपने हाथ में बंदूक लिए होते हैं कि हमें बताओ, नहीं तो हम बंदूक चला देंगे? नहीं, वो इल्मी बात होती है, इल्मी बात करते हैं। और इल्मी बात को इल्मी अंदाज में होना चाहिए और इल्म में जहालत को शामिल नहीं करना। नुक्ते रखना, बातें करना, चाबियां रखना, ये जहालत की बातें हैं। अगर आप उसका बयान कर रहे हैं तो सीधा उसका बयान कीजिए। बात दूसरी तरफ चले गई। फिर वापस आते हैं वर्किया से। अगर आपने काम लेना है तो वर्किया के साथ आपको शम्मिलफार शामिल करना पड़ेगा। वर्किया के जौहर भी उड़ाए जाते हैं। उसके जौहरों को पहले जौहर उड़ाकर फिर उनको कैंप भी किया जाता है, हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वर्किया को बराह रास्त इस्तेमाल करना है तो बराह रास्त शम्मिलफार को शामिल कीजिए। अगर आप जौहर उड़ाना चाहते हैं, आपको किसी ने बताया हुआ है कि जौहर उड़ाएंगे तो बहुत मुसफ़ा होंगे, वो काम करेंगे, तो आप जौहर उड़ा लीजिए। मैं बल्कि इस हक में नहीं हूं, मैं सिर्फ बराह रास्त वर्किया से काम लेने के हक में हूं। आप उसके जौहर डालें तो जौहर उड़ाने के बाद फिर उसके साथ शम्मिलफार को शामिल कर लें, वो काम करने लगेंगे। यानी ये ऐसा ही है कि अगर वर्किया से काम लेना है तो शम्मिलफार लाजमी आपने उसके साथ शामिल करना है। लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर शंगरफ से भी काम लेंगे तो वहां पर भी शम्मिलफार को साथ रखेंगे। शम्मिलफार वो एक बुनियादी अंसर है जो कि इन नुस्खों की कामयाबी की जमानत होता है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने सिर्फ नुकात रखूंगा। अब दूसरा नुक्ता वो ये है, अगर कोई चीज संड हो जाए, यानी आपने वर्किया बनाई वो संड हो गई, आपने शम्मिलफार बनाया वो संड हो गया, आपने शंगरफ को बनाया वो संड हो गई, तो फिर क्या करेंगे? कहां भागते फिरेंगे? सुन लीजिए, अगर आपने शंगरफ कायम की और वो संड हो गई तो आप उस संड चीज के साथ उसी की जात कच्ची हालत में उसके साथ खल कीजिए और तशविया दीजिए, खल कीजिए और तशविया दीजिए। चंद तशवियों के बाद उसको चेक कीजिए, वो जारी होगी। आपने कभी सोचा था इस बारे में कि ऐसा भी होता है? जो मैं अक्सर बात करता हूं, ये आग में बाग लगाने वाली बात है। यानी बिल्कुल उलट, जहां हमारी सोच भी नहीं जाती, ये उस तरफ का अमल होता है। अब 2 चीजें आपके सामने आ गई। एक तो ये कि वर्किया शम्मिलफार के बगैर काम नहीं करेगी, और दूसरी चीज, अगर कोई चीज संड हो जाए, वर्किया संड हो गई तो कच्ची वर्किया उसके साथ खल करके तशविया दीजिए, वो जारी हो जाएगी। शम्मिलफार संड हो गया, शम्मिलफार के साथ कच्चा शम्मिलफार खल कीजिए, उसे तशविया दीजिए, वो जारी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जब हम खल करेंगे तो कौन सी बूटी का पानी डाला जाए?
भाई अगर वो पानी साथ डालना मखसूस बूटी का होता मैं बता देता, लेकिन आप किसी भी बूटी का पानी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बूटी का पानी आपके पास नहीं है तो आप सादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ खल करके तस्वीर देंगे तो उसका आपस में अमल होगा और वो जारी हो जाएगी। तीसरा नुक्ता, हर वक्त तवज्जो खुदा की इमदाद की रखना है, क्योंकि हर काम उसी कर्म से होगा, उसी के फजल से होगा। यहां कुछ लोग कह सकते हैं, कुफार लोग जो इस तरह साइंस में डेवलपिंग कर रहे हैं, इसका नई से नई इजाजत कर रहे हैं, वो तो खुदा की तरफ रुजू नहीं करते। भाई उनको छोड़े, हम मुसलमान हैं और हम ये बात जानते हैं, ईमान है इस बात पर कि जो रब चाहता वही होता है, अगर उसकी रजा हो तो बहुत कुछ होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये सिर्फ ईमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि वो जो कारसाज़ अव्वल है, जिसने कायनात को बनाया है, जिसने कवानीन दिए हैं, उसने आदम अलैहिस्सलाम को जब अस्मा का इल्म सिखाया था तो वो अस्मा क्या थे? यही कायनात की तख्लीक थी, यही वो इल्म था, तकवीने कायनात थी, कायनात किस तरह बनती है, कैसे चलती है, क्या असूल है, क्या ज़ाब्ते हैं। क्योंकि उस वक्त तो कोई शरीयत तक वजूद नहीं थी, शरीयत का वजूद ही नहीं था, और ना फरिश्तों के लिए शरीयत थी, मुकाबला फरिश्तों ही था ना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आज मैंने आपके सामने सिर्फ असूलों पर बात की है और आपके सामने वो नुकात रखे हैं जो कि हम अक्सर उनकी परवाह नहीं करते, उनको नहीं समझते। ये बात याद रखिए, पहले इल्म बाद में अमल। इल्म के बगैर अमल नहीं हो सकता। अगर आपको इल्म नहीं है तो आप सफर पर नहीं जा सकते। यहां तक कि अगर आपने किसी गांव या शहर को जाना होगा तो उसका भी पहले आपको रास्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको रास्ता मालूम नहीं होगा तो आप नहीं पहुंच सकेंगे। मंजिल आपने अपने जहन में तय करनी है और उस तक पहुंचने के रास्ते को हासिल करने के लिए आपने कोशिश करनी है, उसको मालूम करना है, उसको जानना है। सही रास्ते का इल्म होगा, सही मंजिल तक पहुंच सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।